सरफेस केमिस्ट्री शुरू कर लेते हैं अपन है। अभी सरफेस केमिस्ट्री में व्हाट विल हैपन, जैसे इन सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो जनरली वी से दैट द केमिस्ट्री व्हिच इज टेकिंग प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री। सपोज वी विल से दैट, जैसे अपन कहते हैं ना कि इलेक्ट्रोड्स पे अपन बोलते हैं, जैसे इलेक्ट्रोड्स होते हैं तो जो इलेक्ट्रोड्स पे डिपोजिशंस ऑफ द कैटायन और एनायन होते हैं तो उसके सरफेस पे होते हैं ना कैटायन और एनायन का डिपोजिशन, then it is called surface chemistry. The deposition of the cations on the cathode anode, or we say that corrosion of metal, corrosion अंदर थोड़ी होता है, सरफेस पे होता है, राइट ना। जो मेटल का corrosion होता है वो किस पे होता है, सरफेस पे होता है, that is also surface chemistry. फिर अपन कहेंगे जैसे एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस होता है, सभी किसी मतलब all metals have tendency to absorb gases to some extent, but nickel, platinum, palladium, they have more tendency to absorb hydrogen gas. So adsorption of gases also take place on the surface. मास्क वगैरह बनाते हैं अपन, जो मतलब चारकोल मास्क होते हैं पॉइजनस गैसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो उसमें पाउडर्ड चारकोल अपन ऐड करते हैं बिकॉज चारकोल हैज in powdered form it has more surface area, so more adsorption. That is also surface chemistry. So the chemical reaction or the chemistry taking place on the surface of substance. So the chemical reaction or chemistry, केमिकल रिएक्शन इसलिए बोल रहा हूं मैं, एंड केमिस्ट्री वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि वो एड्सॉर्प्शन भी हो सकता है। तो द केमिकल रिएक्शन और एड्सॉर्प्शन फिनोमेना taking place on the surface of on the surface of अभी surface of will read that generally gases तो होता नहीं, either it will be a liquid or it will be a solids on the surface of solids or liquids is called surface chemistry, is called surface chemistry. So for example we can read that, for example corrosion of metal, it takes place on the surface. Corrosion is taking place on the surface, right? That is corrosion taking place on the surface. Electrolytic deposition, so electrolysis process, that is electrolytic deposition. Heterogeneous catalyst, heterogeneous catalyst, heterogeneous catalyst, etc. These all are the process which take place on the surface. So we can say that the phenomena like adsorption, colloid formation, colloids formation, emulsions, they all are surface phenomena, are surface phenomena. So are example of our surface reactions, surface reactions or adsorption. Adsorption तो example में लिखा ही हुआ है अपन ने, तो our surface chemistry. Now what we said that why the surface chemistry take place?
So we know that the particles which are present on the surface of liquid or solids have higher energy than the particle present inside. We know that the surface particles in solids and liquids, in solids and liquids have higher energy, higher energy then they are present inside the liquid or solids. Higher energy than present inside. So we know that one thing कि अगर मान लेते हमारे पास कोई लिक्विड है, वी आर टॉकिंग अबाउट अ लिक्विड, तो लिक्विड में क्या होता है, द पार्टिकल विच आर प्रेजेंट इनसाइड द लिक्विड particle which is present inside is equally attracted by other particle present around it, is equally attracted by other particle present around it, attracted by other particle present around it. So the resultant force for this will be zero. The force will be equal to zero. The resultant force for this will be equal to zero. But the particle which is present on the surface is only attracted by inner particles, but not by the particle outside. So its energy, its resultant forces never will be equal to zero. And that was the reason we know that why the liquid forms a drop because of surface tension. That is surface pressure. Tension means pressure. That is because the surface particle have higher energy, so they get folds because of attraction with each other. It get folded, so it forms a spherical shape. Since the surface particles are having higher energy, these surface particles are having higher energy, so they have tendency to attract the other particle from the atmosphere, or they have tendency to attract the other particle. So that was the reason if we keep a paper on a liquid paper, अगर हम लिक्विड के ऊपर पेपर को रखेंगे तो उस पेपर को निकालना मुश्किल होता है, रादर देन अगर हम पेपर को सरफेस पे, सॉलिड सरफेस पे रखेंगे और उसको निकालेंगे. तो सॉलिड सरफेस का भी तो एनर्जी ज्यादा होता है, बट व्हाट हैपेंस ना, पेपर इज सेल्यूलोज और सेल्यूलोज में देयर इज OH बॉन्ड्स. If cellulose has a number of OH bonds, it will form hydrogen bond with water, and hydrogen bonds are stronger. They have much stronger strength. So if they are stronger, तो जब हम उस पे पेपर ऐसे रखेंगे, पेपर रखेंगे, तो those hydrogen bond will interact with the hydrogen bond which are present on the surface, and they will stick with that hydrogen bond. So it is difficult to remove the paper from the liquid surface. Not only paper, if you keep any other particles also, if anything, मतलब even we can say that a leaf, उसको भी अगर हम रखेंगे तो water में थोड़ा stick हो जाता है. Reason is that only. But leaf में भी cellulose है, that is also hydrogen bonds. But the dust which goes on right now present in the atmosphere is goes on stick on water. The dust sticks because the particles have higher energy. So it has higher energy than this. So this has higher energy than the other particles. So is higher energy. Its energy, we can say that energy will be equal to zero for this. Reason the force will be zero for that. The resultant force. Mainly we have to discuss in this chapter the solid surface. So let us come to the solid surface. Even the liquid surface. That's why we have written that the phenomena taking place on the surface of solids or liquids is called surface chemistry. So this is liquid what we discussed. Let us discuss the solids. Similarly, the particle present on the solid surface. Suppose we are having a solid surface like this. This is a solid we are having. Then the particles which are present on the solid surface will have higher energy than the particles which are present in the inner solids, inner cell.
sphere, or you can say that inert solids. It can have any shape. We are not talking about that. It will only have a spherical shape. तो सरफेस पे एनर्जी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द पार्टिकल प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द सॉलिड. एंड दैट वाज द रीजन वी से दैट कि अगर हम वॉल पे चेक करेंगे ना तो वॉल पे डस्ट होता है. डस्ट क्यों होगा? बिकॉज द पार्टिकल विच आर प्रेजेंट ऑन द वॉल, द कंक्रीट पार्टिकल विच आर प्रेजेंट ऑन द वॉल, outer surface of the wall, have much higher energy than the particle which are present inside the concrete wall. So they have tendency to attract the molecule and retain on their surface, because that attraction is what? A bond formation. A bond formation is an exothermic phenomenon. So energy will be released. Even we know that the dust is stick on the roof also. Roof पे भी stick होता है वो dust. What was the reason? Because roof पे भी जो particles होंगे उनका energy, the particle which are exposed in the atmosphere, the solid particle, they have higher energy than the particle which are present inside the wall. So they also have a tendency to attract the dust particle, because that attraction is their energy is more. If they have higher energy, they will attract the particles, and that attraction will leads to a bond formation type. It will not be a chemical bond, but there will be chemical. There can be a chemical bond. There can be a physical bond also. So that retaining of that particle on the surface will be an exothermic phenomena. If it is exothermic phenomena, it doesn't require any energy. So that was the reason we said that roof पे भी अगर आप चेक करेंगे ना तो आप पहले roof को साफ करो. After some days, you will again see that there will be a dust on the roof. The reason is because the outer particle present on the roof have higher energy, so they have tendency to attract the particle and retain that on the surface, and it is an exothermic phenomenon. So we said that the surface particle have tendency to attract the particle and retain on the surface. So suppose this is a adsorbed particle. So this is a solid we are having. Then this solid is called, the solid is called adsorbent, जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन होना, जिस सरफेस पे जिस पे स्टिक होता है, जिस पे स्टिक होगा वो एड्सॉर्बेंट है, और जो स्टिक होगा दैट इज कॉल्ड एड्सॉर्बेट. That is called adsorbate. We can remember like that: solvent, which is present in excess. So ent means it is in excess. Solvent, it is in excess. So adsorbent, which is present in excess. Adsorbate, which is stick on the surface of solid or liquids, that is called adsorbate. Generally, the adsorbent, the very good adsorbent are, we'll say that all solid will act as an adsorbent. We have talked about the roof also, कि stick wall पे, roof पे भी dust particle stick होता है, because the surface particle have more energy as compared to the particle present inside, because the particle which are present inside is attracted in all directions, equally and oppositely attracted in all directions. So its resultant force will be zero. But the particle on the surface are not having a resultant force is equal to zero. So we'll say that the very good adsorbent are, the good adsorbent we can say that is silica gel, because they are porous. We'll discuss also what is adsorbent and what is adsorbate. The silica gel, alumina, charcoal, clay, these are very good adsorbent. And I'm not talking कि मतलब other solid will not be the good adsorbent. Even the concrete wall is a good adsorbent for the dust. But these are those adsorbent which shows higher degree of adsorption. What are the adsorbate? We can say any gas, Cl2, CO, any gas you can write, H2, water vapors, we can write any adsorbent. These are adsorbent. Even a dust particle we are talking about, adsorbate on the concrete wall. Adsorbate can be any, which is adsorb on the solid surface.
All solids have tendency to adsorb gases to some extent, or the dust particle to some extent. But these are the adsorbent which has very high tendency to adsorb. Depending on the nature of adsorption, this is called adsorption phenomena. Now we can have a definition also. The phenomena of attracting the particles and retaining on the surface particles of adsorbate and retaining them on the surface of solid or liquid. These solid or liquid, we say that is adsorbent. Increasing the concentration of and increasing the concentration on the surface. Concentration on the surface is called adsorption phenomena. Is called adsorption phenomena. That is adsorption. So adsorption is a surface phenomena. If we talk about adsorption, because there is other word also that is called absorption. Adsorption and absorption. So if we talk about that adsorption and absorption, the adsorption is a surface phenomena, but its absorption is a bulk phenomena. Take place on surface of adsorbent. Surface of adsorbent. So it is a surface phenomena. Absorption is a bulk phenomena. It absorbs homogeneously in the entire adsorbent. Take place homogeneously in the complete solid, entire solid. So we can say that the adsorption and absorption, what is the difference? So the adsorption is a surface phenomena. What we have to study in this chapter, हमको surface chemistry ही पढ़ना है. And the absorption is a bulk phenomena. As we write a difference between the evaporation and vaporization. Evaporation only takes place from the surface. That is also a surface phenomenon. Whereas the vaporization takes place from the inner particle in the liquid also get vaporized. Then it is called the vaporization. So vaporization is a bulk phenomenon. It takes place from homogeneously from the entire liquid. Whereas the evaporation is a surface phenomenon. That is how we get the difference. If we talk about the adsorption, it takes place on the surface. Absorption, it takes place like this. That is absorption. It takes place inside, as we say that, if we talk about that, if the dust particle sticks on
or I'm having a solid, and the solid is the water only adsorbs on the surface of the solid, then it is a adsorption. But if you take a sponge, उसको वाटर में डिप करेंगे तो वाटर ऊपर भी स्टिक होगा और अंदर भी जाएगा उसके। अगर वो ऊपर भी स्टिक होगा अंदर भी जाएगा, then it is a bulk phenomenon. अगर कहीं वाटर गिरा हुआ है तो उसे अपन सॉलिड से ऐसे ऐसे करेंगे तो वाटर ज्यादा इजीली रिमूव नहीं होगा। हम मेनली क्या करते हैं, उसे कपड़े से साफ करते हैं, बिकॉज दैट विल शो एब्जॉर्प्शन। अगर हमको कोई बल्क फिनोमेना करना है, वी कैन टेक एग्जांपल लाइक दिस। सपोज वाटर वेपर्स है मेरे पास, मेरे पास अगर उसे सिर्फ थोड़ा सा मॉइस्चर एड्सॉर्प्शन करना है, आई विल टेक सिलिका जेल। और अगर मुझे बल्क फिनोमेना करना है, दैट इज एब्जॉर्प्शन, then I will take anhydrous CaCl2, the dehydrating agent. You can take concentrated H2SO4 also, that is a dehydrating agent. अगर थोड़ा सा ही फिनोमेना करना है, सरफेस फिनोमेना, जैसे एक छोटा सा बैग सिलिका जेल का बैग होता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में भी होता है, न्यू शूज में भी पड़ा होता है, तो वो क्यों? सो दैट इट कैन एब्सॉर्ब द मॉइस्चर, एड्सॉर्प्शन, दैट इज सिलिका जेल। जो छोटा सा एक बैग आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में जनरली पड़ा होता है, दैट इज एड्सॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमेना। अगर मुझे वाटर को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करना है तो फिर मुझे dehydrating agent ऐड करना होगा। सिलिकल जेल इज नॉट अ dehydrating agent, it can only absorb the moisture, not the dehydration. So that is the difference, right? So rusting will be a adsorption phenomena, it is a surface chemistry. It takes years na, to carry out the reaction. Absorption to bulk phenomena, it will take place instantly. अगर adsorption एंड सॉर्प्शन दोनों ही हो रहा है, तो अपन इसे डायरेक्टली सॉर्प्शन भी लिख सकते हैं। If both are taking place simultaneously, we can say it is a sorption. Removal of adsorbate from absorbent is called desorption. Removal of adsorbate from the adsorbent is called desorption. So we can say that obviously we'll say that it will take place in more time as compared to that is absorption. That is will be a slow process ना, धीरे 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 वो absorption होता रहता है, but this will be, तो एनहाइड्रस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 करो, वाटर का अल्कोहल का भी डिहाइड्रेशन कर दूंगा। अभी तो अपन वाटर की बात कर रहे हैं। Then we can say that removal of absorbent from the absorbent adsorbent is called
desorption. If we talk about the thermodynamics of this, thermodynamics of adsorption, one thing we know that थर्मोडायनेमिक्स अगर पढ़ना है तो किसी भी प्रोसेस को अगर एक्सप्लेन करना है तो हमको इससे एक्सप्लेन करना होगा। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। वन थिंग वी नो दैट delta G is free energy present with the system by which we can do the work. Delta H is what? Total enthalpy, total energy exchange in the reaction. Delta S is entropy and T delta S is energy again. So T delta is that energy which is present in random order. We cannot do the work from the random energy, disorder energy. तो हमने टोटल एनर्जी से डिसऑर्डर एनर्जी को माइनस किया तो आई गॉट दैट एनर्जी विच इज इन ऑर्डरली मैनर विच कैन बी यूज्ड टू डू द वर्क। अभी सरफेस फिनोमेना, वी नो दैट सरफेस फिनोमेना टेक प्लेस ऑन इट्स ओन। सरफेस फिनोमेना टेक प्लेस ऑन इट्स ओन, टेक प्लेस ऑन इट्स ओन। तब तो मैं सीधा बोल सकता हूं ना, देयरफॉर डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। तब मैं बोल सकता हूं डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। ठीक है ना, डेल्टा जी को नेगेटिव होना चाहिए। अब डेल्टा जी को नेगेटिव होना चाहिए, वन थिंग वी नो दैट it is surface chemistry is a adsorption process na? And adsorption is a exothermic phenomena. It is a bond formation na? We are talking always about the attraction. हमने अभी तक हमेशा जो भी बात की वो अट्रैक्शन की बात की, और अट्रैक्शन इज एक्सोथर्मिक फिनोमेना। डेल्टा एच विल बी नेगेटिव, वी नो दैट बिकॉज डेल्टा एच इज नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये हम बहुत पहले से पढ़ते आए, राइट? So we'll say that it is an exothermic phenomena. It is always an exothermic phenomena. है ना? Exothermic phenomena. So you will never think about delta H positive. इसलिए मैंने always word भी डाल दिया. So delta H will be negative. अभी डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव। और डेल्टा एस क्या होगा? वो भी नेगेटिव। सिंस आपने डेफिनेशन में बताया था मुझे, इससे पहले आपने डेफिनेशन लिखा था, the concentration on the surface increases. The phenomena of attracting and retaining the adsorbate on the surface of adsorption by increasing the concentration on the surface of adsorbent is called surface chemistry. The adsorption. So adsorption is always increasing the concentration on the surface. It means it is increasing the packing. So if the packing increases, we know that what will happen. If the packing increases, delta S decreases. So since the packing adsorption is increasing the concentration, since the adsorption is attraction phenomena. Attraction phenomena. So डेल्टा एस इज नेगेटिव। अब डेल्टा एस नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। भाई अगर डेल्टा एस नेगेटिव है तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, टी डेल्टा एस। और ये डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होगा, कभी पॉजिटिव नहीं होगा। व्हाट इज सो? अरे भाई आपने तो कहा डस्ट रूफ पे भी स्टिक हो जाएगा। अब और क्या प्रोसेस चाहिए?
अगर रूफ पे भी स्टिक हो जाएगा इसका मतलब है कि इट इज एक्सोथर्मिक फिनोमेना। सो सरफेस फिनोमेना टेक प्लेस ऑन इट्स ओन, वो अपने आप ही होता है। तो अपन कहेंगे इसका मतलब है कि टी डेल्टा एस वैल्यू जो है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा छोटा होता होगा डेल्टा। देयरफॉर फॉर डेल्टा जी नेगेटिव, द magnitude of T delta S is always less than delta H। तो इसका नंबर अगर 5 है तो इसका नंबर 2 रहता होगा मैग्नीट्यूड में। तो ये -5 है, ये -2 हो जाएगा क्योंकि डेल्टा एस भी हो। तो अपन माइनस साइन -2, अगर डेल्टा एस मान लो -2 है तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड हमेशा बड़ा होता है उससे। अपन ने साइन को कंसीडर नहीं किया, मैग्नीट्यूड का मतलब है अपन ने सिर्फ नंबर की बात की। अपन को ऑलरेडी पता है कि ये एक्सोथर्मिक है तो माइनस लगेगा, और ये वैल्यू में डेल्टा एस पॉजिटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव है, तो इस केस में ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये टोटल टी डेल्टा एस जो है वो बड़ा होगा हमेशा। टी डेल्टा एस जो है, अगर अपन मॉड लगाएं तो ऐसे कर सकते हैं, दैट इज टी डेल्टा एस हमेशा छोटा होगा डेल्टा एच से। बट ये फिर अपन ने मॉड लगा लिया ताकि साइन कुछ भी हो, क्योंकि हम अपने आप ही वो नंबर देंगे ना उसमें क्या लिखना है। तो अगर ये -5 है तो ये +2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा तो से दैट उसका मैग्नीट्यूड हमेशा बड़ा होगा उससे। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, एक प्रोसेस था जो ऐसे हो रहा है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो, हाँ तो अपन कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये वैल्यू बढ़ेगी, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से एडसॉर्प्शन फिनोमेना कम होगा। वो क्यों? जितना ज्यादा ये वैल्यू बढ़ेगा उतना डेल्टा जी नेगेटिव कम होगा। और एक टाइम ऐसे भी आ सकता है जब डेल्टा जी, जब ये 5 हो जाएगा तो डेल्टा जी 0, और बढ़ाओगे तो एडसॉर्प्शन नहीं होगा। एडसॉर्प्शन डजंट टेक प्लेस एट वेरी हाई टेम्परेचर, ऑब्वियस सी बात है भाई। एडसॉर्प्शन मतलब अट्रैक्शन ही तो है। टेम्परेचर बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ाने तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, ये तो सिर्फ अट्रैक्शन था। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा मैं तो वो अट्रैक्शन ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक होना शुरू होगा। तो क्योंकि अगर जितना एनर्जी लिबरेट हो रहा था उतना ही एनर्जी अगर मैं दे दूं तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। सो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द एब्जॉर्प्शन फिनोमेना डिक्रीजेस। ऑन सर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, बोलो। सर इनिशियली तो डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 ही रहेगा ना, क्योंकि तब तो कंसंट्रेशन भी बहुत कम रहेगा और वो स्पॉन्टेनियस भी है। बिल्कुल नहीं, एक भी पार्टिकल का एड्सॉर्प्शन हुआ मतलब उसके सरफेस पे कंसंट्रेशन बढ़ गया। आपने पैकिंग की, डेल्टा एस नेगेटिव। पहले ये फ्री था, इस पे कुछ भी नहीं था, मुझे कोई मतलब नहीं इसके डेल्टा एच से। एक भी पार्टिकल अगर जाके इसके सरफेस पे स्टिक हुआ, दैट इज द एड्सॉर्प्शन फिनोमेना। एक भी पार्टिकल, तो मैं उसके लिए एंट्रोपी नेगेटिव बताऊंगा। हमारे लिए तो कंसंट्रेशन बढ़ गया ना सरफेस पे, हाँ सर। ठीक है ना। तो एड्सॉर्प्शन हमेशा नेगेटिव बताएंगे। अपन ये बताएंगे कि भाई हम तो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे सारा कुछ डिस्कस कर रहे हैं, और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मैं ये बता सकता हूं, क्योंकि हमारे लिए अगर डस्ट रूफ पे भी स्टिक हो रहा है इसका मतलब है कि भाई सरफेस फिनोमेना अपने आप ही होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रूफ पे स्टिक कम होगा, इसका मतलब है हमें डस्टिंग विंटर्स में ज्यादा करनी पड़ेगी और समर्स में कम करनी पड़ेगी, वहां टेम्परेचर ज्यादा होता है ना समर्स में। जस्ट फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं, इसे बता सकता। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं भाई दैट इज एडसॉर्प्शन फिनोमेना डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। वो अपने आप लिख लेना, वो नहीं लिख रहा मैं, ये लिख दो।
लिख ही देता हूं। एडजॉर्प्शन decreases with increase of temperature. With increase of temperature. Increase of temperature. That is absorption. ठीक है। अब depending on the nature of depending on nature of adsorption, depending on the nature of adsorption, the adsorption can be classified as अपन एड्सॉर्प्शन को क्लासिफाई भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि कैसे एड्सॉर्प्शन हो रहा है। फिजिसॉर्प्शन, अगर फिजिकल बॉन्ड बन रहा है, और केमिसॉर्प्शन अगर केमिकल बॉन्ड बन रहा है। अगर केमिकल बॉन्ड बन रहा है तो मैं इसको दो टाइप से क्लासिफाई कर सकता हूं। भाई थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे एड्सॉर्प्शन में, क्योंकि उन्होंने सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन भी पूछ लिया और थर्मोडायनेमिक्स भी पूछ लिया, इसलिए क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस भी होंगे ज्यादा। तो ये दोनों ही टाइप का फिनोमेना हो सकता है। तो ठीक है, अपन इसको डिफरेंस जैसे ही पढ़ लेते हैं, बाद में अगर स्कूल में आता है तो आप उस पॉइंट्स को जो भी अपन पॉइंट्स लिखेंगे तो सेपरेटली भी पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन फिजिसॉर्प्शन या एक्सप्लेन केमिसॉर्प्शन, तो अलग अलग एक्सप्लेन कर देना, और डिफरेंस पूछेंगे तो अपन डिफरेंस लिख देंगे। फिजिसॉर्प्शन जो होता है, अगर एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट में वंडरफुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब देयर इज ओनली अ सरफेस अट्रैक्शन, देयर इज नो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, then it is called फिजिसॉर्प्शन। That is physical attraction between the two particles. So अगर फिजिसॉर्प्शन का मतलब होगा when there is van der Waals force of attraction, van der Waals force of attraction, attraction between adsorbate and adsorbent and adsorbent, then it is called फिजिसॉर्प्शन। केमिकल सॉर्प्शन में होगा when there is a chemical bond formation, when there is chemical bond formation chemical bond formation between adsorbate and adsorbent. Adsorbent which is an excess, आपने कहा जिसमें एंट होगा सॉल्वेंट जैसे, that will be an excess. Solvent that will be in excess. अभी मैं ऐसे भी कर सकता हूं, अगर मुझे दोनों को समझना है तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, केमिसॉर्प्शन और फिजिसॉर्प्शन। अगर थोड़ा सा डेली लाइफ से फिनोमेना को कोरिलेट किया जाए, जो तुमने देखा होगा थोड़ा बहुत, अगर देखा हो तो आपको बड़ा इजी होगा उसको, मतलब कभी अपन को याद नहीं रखना पड़ेगा व्हाट इज फिजिसॉर्प्शन, व्हाट इज केमिसॉर्प्शन। अगर अपन ऐसे आप अज्यूम कर लो कि जब भी मुझसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फॉर फिजिसॉर्प्शन, मैं अपने सारे आंसर ये अज्यूम करके दूंगा कि मेरे पास एक क्लॉथ है और मैं इस क्लॉथ से अपना घर में सफाई करने वाला,
अपन क्या करते हैं, ऐसे साफ किया, डस्टिंग करते हैं अपन, एक लेयर बन गया, दूसरा लेयर बन गया, थोड़ी देर के बाद अपन उसे ऐसे कर देते हैं, हटा देते हैं, हट गया, फिर उसके बाद डस्टिंग शुरू हो जाते हैं। मतलब मैं एक कपड़े को लेके घर में डस्टिंग कर रहा हूं, दैट इज, मैं सारी चीजें उसी से एक्सप्लेन करूंगा बस। मैं इसको आंसर ही ऐसे लिखूंगा, मैं अपना सारा कैलकुलेट मतलब सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा डस्टिंग विथ क्लॉथ। और अगर नहीं किया है तो करके देखना घर में, अभी तो कोरोना भी है, घर में काम भी होता है तो बहुत, तो ऐसे करके देख सकते हैं। केमिसॉर्प्शन मैं आपको बताऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ कि अगर मान लो हमारे पास कोई एक क्लोथ है, व्हाइट कलर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मैं आपसे कहूंगा चलो इस पे ग्रीन कलर कर दो या कोई कलर कर दो, इस पे कलर करते हैं अपन क्लोथ में, तो उसको कलर कैसे करेंगे वो देखते हैं, कलरिंग ऑफ क्लोथ। तो किसी भी क्लोथ को अगर मुझे कलर करना है तो मैं उसमें उसमें केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कलरिंग ऑफ क्लोथ। मैं उससे अपने सारे के सारे आंसर बताऊंगा। Coloring of cloth में there is a chemical bond formation between the OH bond of the cellulose of the cloth with the dyes जिससे अपन कलर करते हैं, there is a chemical bond formation। और भी एग्जांपल दूंगा क्योंकि अपन ने काफी कुछ पढ़ा हुआ है। अभी मैं कहूंगा भाई डस्टिंग करूंगा ना, तो बॉन्ड एनर्जी बिटवीन द क्लॉथ एंड द डस्ट विल बी वेरी लेस। तो थोड़ी देर के बाद जब 2-3 लेयर बन जाते हैं उसके बाद डस्ट उस पर स्टिक होना, कपड़े पे स्टिक होना बंद हो जाता है। हम क्या करते हैं, उसे थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो नीचे गिर जाएगा सारा डस्ट, उसके बाद फिर शुरू हो जाता है। तो बॉन्ड एनर्जी ऑब्वियस बात है, इट विल बी एक्सोथर्मिक फिनोमेना, डेल्टा एच इज नेगेटिव। और डेल्टा एच नेगेटिव तो सभी के लिए, इसके लिए भी होगा उसके लिए भी होगा, तो एक्सोथर्मिक फिनोमेना है ना। द डेल्टा एच इज नेगेटिव एंड वैल्यू is from 20 to 40 किलोजूल पर, ये बॉन्ड एनर्जी होगी फिजिकल एब्जॉर्प्शन में, किलोजूल पर मोल। और अगर मैं अज्यूम करूंगा इसमें भी डेल्टा एच तो नेगेटिव होगा, इसमें डेल्टा एच इज नेगेटिव एंड सिंस इट इज अ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, तो विल राइट दैट डेल्टा एच इज नेगेटिव एंड द बॉन्ड एनर्जी is from 82 to 40 kilojoules per mole। दोनों में ही डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होगा बिकॉज बोथ आर एक्सोथर्मिक फिनोमेना, बट इसमें बॉन्ड्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब मैं लिखूंगा इसमें मल्टी लेयर स्पॉन्ड इस फॉर्म, ठीक है भाई। अपन एक बार डस्टिंग एक जगह करते हैं, उसी कपड़े से दूसरी जगह भी कर देते हैं, थर्ड जगह भी कर देते हैं, जब उसमें ज्यादा लेयर बन जाते हैं तो स्टिक होना बंद हो जाता है, फिर हम उसे हटा देते हैं, फिर उससे डस्टिंग करते हैं। कपड़े में ऐसे नहीं करते अपन, ग्रीन कर देते हैं, फिर रेड कर देते हैं, फिर एक और कलर, ऐसे थोड़ी होता है। और ऐसे भी नहीं होता कि अच्छा मेरा ग्रीन टी शर्ट है, उसको ऐसे झड़ाएंगे तो ग्रीन कलर कर दिया, नहीं, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, मतलब मोनोलेयर फॉर्मेशन। तो अपन इसको मोनोलेयर बताएंगे फॉर्मेशन, इसमें सिर्फ मोनोलेयर फॉर्मेशन। फोर्थ कर लेते हैं, इट्स नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, नॉट द प्रोसेस, द फिनोमेना इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, फिनोमेना इज नॉट स्पेसिफिक। ये जो फिनोमेना होता है दैट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, व्हाई इट इज सो। भाई आप डस्टिंग किसी भी कपड़े से कर लो, हमें फर्क नहीं। सो इट्स, ये कोई मतलब वो नहीं है कि आप डस्टिंग स्पंज से भी कर सकते हो, कपड़े से भी कर सकते हो, आपको डस्टिंग करना है बस। हाईली स्पेसिफिक इन नेचर।
आपको चूज करना होगा कि किस क्लोथ पे कौन सा कलर करना है। तो आपको कॉमिक कौन सा केमिकल, कौन सा डाई यूज करना हो। पॉलिएस्टर है, नायलॉन क्लोथ है, सेलुलोज मतलब वो खादी वगैरह ऐसे है। तो उनको डिसाइड करना होता है। इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। इट विल बी स्पेसिफिक इन नेचर। अगर हम प्रेशर की बात करें, प्रेशर तो अगर अपन एक बात देखें, अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो रूफ पे डस्ट पार्टिकल का स्टिक होना भी इजी होगा। और चुनाव प्रेशर ज्यादा है ना रूफ में, तो डस्ट पार्टिकल भी रूफ पे इजीली स्टिक हो जाएंगे। लेकिन अगर प्रेशर कम होगा तो जितने फोर्स से वो स्टिक था ना रूफ पे, वो नीचे गिर जाएगा। भाई सरफेस पे क्यों स्टिक हो रहा है? प्रेशर भी तो एक्सर्ट हो रहा है ना। तो हाई प्रेशर ऑलवेज फेवर्स एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। एडसॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो इसमें भी, इसमें दोनों में ही प्रेशर से मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दैट इज केमी एडसॉर्प्शन हो या फिजियो एडसॉर्प्शन हो, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर बढ़ाओगे एडसॉर्प्शन बढ़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा फोर्स से वो स्टिक रहेगा उसमें। कोई प्रेशर मतलब एटमोस्फेयर में अपन प्रेशर की बात करें ना, बाहर वो उसके ऊपर थोड़े प्रेशर की बात करें। पार्टिकल उतना ज्यादा स्टिक रहे। फोर्थ पॉइंट किसी ने बोला, फिर एक बार बता दीजिए सर। तो ठीक है ना, स्पेसिफिक का मतलब मुझे ऐसे थोड़ी होता है। आज डस्टिंग करना है तो आपको ना नायलॉन क्लॉथ से ही करनी पड़ेगी डस्टिंग, किसी भी क्लॉथ से करो। जो कपड़ा घर में मिल जाए उसी से डस्टिंग कर लो, क्या फर्क पड़ता है। वो स्पेसिफिक नहीं होता, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन स्ट्रांग नहीं ना, डस्ट पड़ा हुआ है, वो बॉन्ड वीक है, अपन उसे कपड़े से ऐसे साफ कर सकते हैं। दैट इज नॉट स्पेसिफिक। केमी एब्जॉर्प्शन ऐसे तो वो हाईली स्पेसिफिक होता है। अगर मुझे क्लॉथ में कलर फॉर्मेशन करना है तो भी स्पेसिफिक है, और कलर को अगर रिमूव करना है तो भी केमिकल जो होगा वो स्पेसिफिक होगा। तो कलरिंग ऑफ क्लोथ्स जो करना है उसमें स्पेसिफिक होगा। प्रेशर से एड्सॉर्प्शन करना है, किसी को अपन को स्टिक करवाना है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। एक पॉइंट अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, एक पॉइंट अपन ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, इसमें अपन क्या करेंगे, डस्टिंग किया और फिर अपन ऐसे चढ़ा देते हैं। इट इज रिवर्सिबल। भाई स्टिक भी होगा, रिमूव भी होगा, इसमें ऐसे थोड़ी होगा स्टिक हुआ ऐसे झड़ा दिया उसको, वो कलर गिर गया, मतलब दैट इज इरिवर्सिबल फिनोमेना, इरिवर्सिबल। So we'll say that this is a reversible phenomenon. This is a reversible phenomenon, but that is not a reversible. It will be an irreversible phenomenon. ठीक है, लिखा हुआ है फिनोमेना, अपन को पता है। अब इसको ना स्कूल में लिखोगे, जैसे ये आएगा तो आप काफी का सारा पार्ट जो भी आपको समझ में आ रहा है उसको डिटेल में लिख देना अच्छे से। सेवन पॉइंट, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब ये प्रोसेस करने के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एप्रिसिएबल रिक्वायर्ड नहीं होगा। वो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एप्रिसिएबल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिक्वायर्ड नहीं होता, इसमें होगा। दैट्स अ केमिकल रिएक्शन। ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है जो विदाउट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हो जाए। ये रिक्वायर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो। बिल्कुल।
सारा अब इतना बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो इरिवर्सिबल ही होगा, सारा केमिकल एब्जॉर्प्शन इरिवर्सिबल। हमने कभी क्लोथ से, मैंने आपको एग्जांपल जो दिया ना वो बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया, आपको जो भी करना है जो भी लिखना है, क्योंकि मैं चाहता था कि डेली लाइफ से कोरिलेट हो ना, अपन को पता रहेगा, आप कोई भी क्वेश्चन पूछो मैं बता दूंगा। इसमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन नहीं चाहिए, ये इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन नो appreciable energy of activation energy is required. इसमें कोई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, कोई appreciable एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। इसमें it require energy of activation because the reaction is highly specific, so it requires energy of activation, so it requires appreciable energy of activation। इसमें appreciable energy of activation, if you talk about the temperature effect, प्रेशर तो लिखा हुआ ना, चलो टेम्परेचर की बात करते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो एब्जॉर्प्शन कम होगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से अगर मैं लिखूंगा टेम्परेचर, एक तरीके से अपन इनवर्सली प्रोपोर्शन लिख रहे हैं, मैं इतना पार्ट हटा लेता हूं। टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊंगा तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, सो एब्जॉर्प्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो एब्जॉर्प्शन और टेम्परेचर की बात अगर करोगे आप तो मैं उसे ऐसे लिख लूंगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एब्जॉर्प्शन फिनोमेना कम होता जाएगा और एक टाइम आएगा जब वो, राइट। तो अपन कहेंगे भाई जैसे जैसे एब्जॉर्प्शन होगा तो ऑब्वियस ही बात है, अपन कहेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो एब्जॉर्प्शन कम होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। इसकी बात करें अगर अपन केम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो अपन कहेंगे देखो भाई, इट इज अ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अगर मैं इसमें एब्जॉर्प्शन लिखता हूं और टेम्परेचर की बात करता हूं तो इसमें टेम्परेचर बढ़ाने से एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, मतलब द ग्राफ शुड बी लाइक दिस, टेम्परेचर बढ़ाने से एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद वो कम होना भी शुरू हो जाएगा। व्हाट इज सो, बिकॉज अपन को पता है ना ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन है ना। अगर एक्सोथर्मिक फिनोमेना है तो आप ऐसे बताओगे ना, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिक्वायर्ड है ना उसमें केमिकल रिएक्शन के लिए, ऑल केमिकल रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, वी नो दैट। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर जो एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिक्वायर्ड होता है वो कम हो जाता है। तो इसका मतलब है केमिकल रिएक्शन में पहले अपन को ये एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन था, अब अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो ये एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, अगर टेम्परेचर और बढ़ाया तो यही आ गया। उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, फिर तो ऐसा ना हो कि रिएक्टेंट के ही बॉन्ड ब्रेक होना शुरू, प्रोडक्ट के ही बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाए बहुत हाई टेम्परेचर। तो इस केस में adsorption increases with an increase in temperature because the energy of activation for the forward reaction decreases, because in chemical reactions increase in temperature decreases the energy of activation. So
K increases. अगर K increase होगा तो रेट इंक्रीज होगा. सो इसमें एप्रिशिएबल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चाहिए, बिकॉज सभी रिएक्शन का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एक जैसा थोड़ी होता है, सभी का अलग अलग होता है. दैट्स व्हाई वी हैव रिटन कि भाई दो रिएक्शन जिसके रेट कांस्टेंट सेम है, हो सकता है उनका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अलग हो. भाई दो रिएक्शन जिनके एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन सेम है, तो क्या इनका रेट कांस्टेंट भी सेम होगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है. उनके के अलग अलग हो सकते हैं. सो विल से दैट कि भाई इसमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पर डिपेंडेंट है रिएक्शन, और टेम्परेचर बढ़ाने से जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड होता है टू कैरी आउट द रिएक्शन वो डिक्रीज होता है केमिकल रिएक्शंस में, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा. इसमें कोई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पर डिपेंडेंट नहीं था ना. इट इज ओनली अ फिजिकल अट्रैक्शन, वंडरफुल अट्रैक्शन बिटवीन द टू पार्टिकल्स. इट कैन बी डाइपोल डाइपोल, इट कैन बी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इट कैन बी instantaneous induced dipole. That type of conformation. So this is about the physics option and the chemistry option. So जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन सेम है तो जरूरी नहीं कि रेट कांस्टेंट भी सेम. For the two different reactions. That's why we have written the highly specific in nature. हर एक रिएक्शन के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अलग होगा, तो उसका रेट भी अलग होगा. Now we can say that we got many differences between the chemistry option and the option. अब इनके कोई भी आप पॉइंट्स लिखो, वो सारे के सारे आप इनसे एक्सप्लेन कर सकते हो. कलरिंग ऑफ क्लोथ्स एंड डस्टिंग ऑफ विथ क्लोथ, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, लाइक दैट वी कैन राइट. तो आप बता सकते हो. ठीक है. सो वी गॉट इट कि भाई अगर स्पेसिफिक है तो, और रिएक्शन अगर हाईली स्पेसिफिक होगा तो उसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी स्पेसिफिक ही होगा, और अप्रिशिएबल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिक्वायर्ड होगा फॉर अ केमिकल रिएक्शन. सभी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिक्वायर्ड होगा, और टेम्परेचर बढ़ाने से द एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्शन डिक्रीजेस. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इनिशियली टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा, बाद में जब एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन जीरो हो जाएगा. उसके बाद भी अगर टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे तो डिक्रीज बोल सकता हूं. मतलब व्हेन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बिकम्स जीरो, उसके बाद भी अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बोल दूंगा भाई उसके बाद तो फिर वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फिर तो प्रोडक्ट के ही बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे ना, अगर बहुत हाई टेम्परेचर होगा. नाउ वी कैन राइट दैट फैक्टर्स अफेक्टिंग द एडसॉर्प्शन. व्हाट आर द फैक्टर्स जो एडसॉर्प्शन फिनोमेना को अफेक्ट करेंगे, वो देखते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग द एडसॉर्प्शन फिनोमेना. एक तो अपन कहेंगे भाई नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट. हम जो भी एडसॉर्बेंट यूज करेंगे, मतलब जिस पे एडसॉर्प्शन करवाना है, उनको पोरस होना चाहिए, उनका सरफेस एरिया ज्यादा एक्सपोज होना चाहिए. पोरस होगा तो भी सरफेस एरिया एक्सपोज ज्यादा होगा, या पाउडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, सो दैट दे विल बी द वेरी गुड एडसॉर्बेंट. they must be they must have a large surface area. So they must be in powdered form, or porous. तो very good adsorbents are, example we can write that जो मैंने पहले भी लिखा था आपको, एल्यूमिना, सिलिका जेल, क्ले, charcoal, like that we can write. So the very good adsorbent are
एल्यूमिना Al2O3, सिलिका जेल, दे आर सिलिकेट्स। आरओ वाटर सिस्टम में अपन सिलिका जेल ही यूज करते हैं। सिलिकेट्स, क्ले, चारकोल, एटसेट्रा वी कैन राइट। ये अपन ने पहले भी लिखा। दे ऑल हैव लार्ज सरफेस एरिया, सो दे हैव टेंडेंसी टू एब्सॉर्ब। अभी अपन ने एग्जांपल नहीं लिखा था ना, जैसे अपन बोल सकते हैं नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट में लिख लें एग्जांपल, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट एड्सॉर्बेंट मतलब वो एड्सॉर्बेंट अच्छे होंगे जो इजीली एड्सॉर्ब हो जाए। तो वो कौन से होंगे? तो अगर नॉन पोलर है तो अपन कहेंगे उनका सरफेस एरिया बड़ा होना चाहिए। सरफेस एरिया बड़े होने से वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, और सरफेस एरिया छोटे होने से वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते हैं उनके बीच में। जैसे नोबल गैसेस में कहते हैं, नोबल गैसेस में टॉप टू बॉटम क्या होगा? सरफेस एरिया बढ़ेगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ऑल आर नॉन पोलर ना। तो नॉन पोलर कंपाउंड्स में तो अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उनके बीच में वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेंगे। वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। बॉइलिंग पॉइंट अगर ज्यादा होगा तो क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा। तो फिर सीधा लिखो ना, जिसके लिए ये ज्यादा है उसके लिए वो अच्छा एड्सॉर्बेंट है। क्रिटिकल टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू ए। ए इज वंडरवॉल कांस्टेंट फॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिन गैसेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है उनके लिए टीसी का वैल्यू ज्यादा होता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो दे आर इजीली लिक्विफेबल गैसेस। तो सीधा इसी से कोरिलेट कर देते हैं। तो easily liquefiable gases has more adsorption tendency than other gases. easily liquefiable gases कौन से? जिसके लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ए का वैल्यू ज्यादा। जिसके लिए ए का वैल्यू ज्यादा होगा उसके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा। आप तीनों में से किसी से भी बता सकते हो आंसर। या तो मुझे यह पता हो कि वो इजीली लिक्विफेबल गैस है, या मुझे ये पता हो कि उसके लिए ए का वैल्यू ज्यादा होगा, वंडरवॉल कांस्टेंट का वैल्यू, या फिर मुझे ये पता हो कि किसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा। मैं नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट बता दूं। The gases which have the easily liquefiable gases which have high value of Wunderl constant A, Wunderl constant A, और हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, हायर TC are good adsorbents. Good adsorbents than others. तो इससे बता सकते हैं अपन, इसमें लिख भी सकते हैं भाई TC will be equal to 8A/27 RB। इससे बता सकते हैं। ये सारा पार्ट अपन ने काफी डिस्कस किया हुआ। एग्जाम्पल में लिखूंगा, एक अपन फिजीज ऑप्शन लिख लेते हैं और एक अपन केमिस ऑप्शन लिख लेते हैं।
adsorption of poisonous gases. Of poisonous gases on charcoal mass. That is a physics option. Chemisorption के लिए अपन लिख सकते हैं adsorption of H2 on metal surface. That is a chemisorption. If you remember that reduction, तो मेटल सरफेस पे हाइड्रोजन एटम जैसे रेडिकल जैसे एड्सॉर्ब होता है, मेटल सरफेस हमको ब्रेक करके देता है बॉन्ड, फिर हम एल्कीन को ऐड करते हैं फॉर द रिडक्शन. So there is a chemical bond between the hydrogen and the metal, empty d orbital of metal. Adsorption of poisonous gases, वो चारकोल मास्क आपने देखा होगा, वो डिफेंस वाले कुछ ऐसे मास्क वगैरह लगा के जाते हैं, that is a चारकोल मास्क. तो जब वो चारकोल मास्क लगाएंगे तो उसमें चारकोल होगा, ऑब्वियसली बात है. तो उसमें जो एयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है वो एब्जॉर्ब नहीं होता होगा क्या? होता होगा ना. तो अगर मान लो मास्क पे सारा का सारा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही एब्जॉर्ब हो गया, तो फिर पॉइजनस गैसेस को कैसे एब्जॉर्ब करेगा? अगर अपन कहेंगे भाई सारा का सारा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही एब्जॉर्ब हो गया, तो फिर पॉइजनस गैसेस कैसे एब्जॉर्ब होंगे? कि भाई उसको थोड़ी पता कि मतलब अच्छा तुम नाइट्रोजन है साइड में रहो, पॉइजनस गैस को आने दो, ऐसे थोड़ी होता है भाई. उसको तो गैसेस को एब्जॉर्ब करना है, जो गैसेस मिलेगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा. तो अपन कहेंगे मास पे तो कोई गैस ही एब्जॉर्ब होता है, नो डाउट. एयर एब्जॉर्ब होगा ना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, लेकिन उनका सरफेस एरिया कम होता है एज कंपेयर टू पॉइजनस गैसेस. पॉइजनस गैसेस होते क्या है? Cl2, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन गैस, इस टाइप से वो पॉइजनस गैसेस होते हैं. इवन मस्टर्ड गैस लाइक दैट ना, और पॉइजनस गैस बताऊंगा मैं. तो इस टाइप के पॉइजनस गैसेस होते हैं जिनका सरफेस एरिया ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से ज्यादा होता है, या उनमें पोलैरिटी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से ज्यादा होती है. मतलब उनका टीसी का वैल्यू, ए का वैल्यू, वन डायमेंशनल कांस्टेंट का वैल्यू नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से ज्यादा होगा. तो दे हैव टेंडेंसी टू डिस्प्लेस, क्योंकि उनका एड्सॉर्प्शन चारकोल में वीकली होगा एज कंपेयर टू वो गैसेस जिनके लिए ए का वैल्यू ज्यादा. तो वो क्या करेंगे? उसे डिस्प्लेस करेंगे. Cl2 का सरफेस एरिया बड़ा है तो उसे डिस्प्लेस कर लेगा, क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रांगली स्टिक होगा चारकोल पे रादर देन द अदर. इसलिए वो गैसेस स्टिक हो जाएंगे मास्क पे. दैट इज एब्जॉर्प्शन. वी गॉट एग्जांपल कि भाई पॉइजनस गैसेस चारकोल मास्क पे एब्जॉर्ब होंगे, और हाइड्रोजन अगर मेटल सरफेस पे लेंगे अपन तो दैट विल बी द राइट. थर्ड वी कैन राइट दैट प्रेशर इफेक्ट. अगर हम प्रेशर इफेक्ट की बात करेंगे तो वी नो दैट adsorption is directly proportional to pressure. If you increase the pressure, the adsorption increases. Abhi, what will happen? The pressure effect is explained by the isotherms. Abhi isotherm matlab at constant temperature. It is explained by the isotherms called
एक तो अपन बोलेंगे भाई दैट इज फ्रेंडलिच, और दूसरा अपन लिखेंगे लैंगमुर आइसोटॉप। ये अपन पढ़ेंगे, थोड़ा ग्राफिकली पढ़ेंगे, थोड़ा डिस्कस करेंगे लैंगमुर आइसोटॉप एंड दैट इज लाइक दैट। राइट, ये अपन पढ़ेंगे, वी कैन राइट दैट। तो अपन आइसोटोप की बात करते हैं, पहले फ्रेंडलिच आइसोटोप पढ़ते हैं और उसके बाद फिर अपन लैंगमुर आइसोटोप पढ़ेंगे। तो पहले अपन चेक कर लेते हैं भाई फ्रेंडलिच आइसोटोप। आइसोटोप सो अपन कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं भाई। इसका भी एक क्वेश्चन और है मेरे पास, देख लेते हैं। सर रिडक्शन में एग्जांपल दिया था कि निकल कैटलिस्ट सरफेस में केमिस्ट्री दिखाएगा इसलिए एल्कीन बनेगा, एल्केन नहीं। ये किसने कहा कि एल्कीन बनेगा निकल में? ये कब बता दिया मैंने? पर निकल कैटलिस्ट तो कंप्लीटली रिड्यूस करता है एल्केन में। हाँ तो होता है ना, अपन ने कब कहा कि एल्कीन बनेगा? सर उसमें आप बोले कि हाइड्रोजन के अटैक के मतलब बस साइड अटैक कर पाएगा और नीचे से और ऊपर से अटैक नहीं कर पाएगा, तो फिर हम लोग अल्केन नहीं साइड अटैक बनाएंगे। कर पाएगा मतलब? स- साइड अटैक कर पाएगा मतलब बोलो, मैंने तो कभी नहीं बोला ऐसा। मैंने तो ऐसे बताया, निकल सरफेस पे आप हाइड्रोजन डालो, हाइड्रोजन निकल सरफेस पे एब्जॉर्ब होगा। अब एल्कीन या एल्केन डाल दो, तो जो पाई बॉन्ड ऑर्बिटल्स होंगे ना एल्कीन वाले, इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन आपस में एक ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे, और ट्रांजिशन स्टेट के बाद इसका डी एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, प्रोडक्शन होगा। ये बताया मैंने तो। जब मैंने एक पॉइंट लिखवाया तो उसमें कहा था कि एवरी ईयर देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस, जिसमें मैंने 3 पॉइंट बताए थे। एल्काइंस से एक बार एल्केन बनाया था जिसमें NiH2, और वहां ये भी बताया था कि प्लेटिनम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये कभी नहीं बताया कि वो रिड्यूस नहीं हो पाएगा, उसको चेक करना तुम्हें प्रोडक्शन में। ओके सर। तो अपन क्या करेंगे, अपन बताएंगे दैट इज विल से दैट, इसमें ये बोलता है कि भाई देखो, दैट इज एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वी नो दैट। मतलब मैं क्या करूंगा, इसमें एड्सॉर्प्शन और प्रेशर में ग्राफ ड्रॉ करूंगा। एड्सॉर्प्शन और प्रेशर में ग्राफ ड्रॉ करूंगा। रिफ्लेक्शन हो रहा ना, उतना रिफ्लेक्शन तो चलेगा, इधर वाला पार्ट चलेगा। अपन क्या करेंगे, ये x/m और प्रेशर में ग्राफ ड्रॉ करूंगा। आपने लिखा एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये लिखा अपन। सो x/m में एड्सॉर्प्शन बोल रहा हूं एक तरीके से, दिस इज अ फ्रैक्शन ऑफ एड्सॉर्प्शन, और जो ग्राफ में बनाऊंगा दैट विल बी लाइक दिस। जो ग्राफ में बनाऊंगा दैट विल बी लाइक दिस, ऐसे ग्राफ बनेगा। फ्रेंडलिच आइसोटर्म मैं प्रेशर के लिए यूज कर रहा हूं, तो बेटर मैं इसको फिजिक्स ऑप्शन से कोरिलेट करता हूं, कोरिलेट। अभी क्या करेंगे अपन भाई, जब प्रेशर, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा एड्सॉर्प्शन भी बढ़ेगा। लेकिन ये ना कि एड्सॉर्प्शन एक लेयर हुआ डस्ट पे, प्रेशर हाई है तो दूसरा लेयर भी बन जाएगा। लेकिन थर्ड लेयर बनने के बाद जो अट्रैक्शन होगा, मतलब ये सरफेस है, सपोज कपड़े का वो क्लोथ का सरफेस है,
तो अपन कहेंगे देखो भाई इस सरफेस पे एक लेयर बना लिया आपने, वो ज्यादा अट्रैक्टेड होगा क्लोथ से। आप दूसरा लेयर बनाओगे तो इसका अट्रैक्शन इससे क्लोथ से कम होगा रिलेटिव टू इसके। लिखा ना अपन मल्टी लेयर विल बी। मैं एक बार और डस्टिंग करूंगा तो इसका अट्रैक्शन इससे तो बहुत कम होगा। तो अपन को लगेगा यार पहले अब इसका डस्ट हटा देते हैं कपड़े का और उसके बाद फिर डस्टिंग करूंगा। मतलब क्या होगा, जैसे जैसे आप इधर एक्स जो है ना, मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज दैट। तो मैं कहूंगा जैसे एड्सॉर्प्शन फिनोमेना एक तरीके से लिख रहे हैं, तो जैसे जैसे मैं प्रेशर को, मतलब ये प्रेशर बढ़ेगा एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा, लेकिन एक पॉइंट आके वो एड्सॉर्प्शन कांस्टेंट भी तो हो जाएगा, रुक भी तो जाएगा वो। ऐसे लेयर्स बनते जाएंगे, लेकिन एक लेयर ऐसे थोड़ी होगा कि हमेशा लेयर बनता ही रहेगा, उस कपड़े से डस्टिंग करते रहो वो चिपकते ही रहेगा कपड़े पे डस्ट। नहीं, वो एक टाइम आएगा जब कांस्टेंट हो जाएगा। मैंने इसको लिखा x जो है ना, वेर x by m is directly proportional to p। इसको 1 by n भी लिख लेता हूं। So x by m will be equal to k into p to the power of 1 by n। मैं बताऊंगा n क्या है, पहले अपन लिख लेते हैं क्या क्या बताया। x is where x is the mass of gas adsorbed, m is the mass of adsorbent, 1 gram adsorbent in powdered form। भाई अपन को पता भी तो है कि आपने 1 ग्राम लिया तो पाउडर्ड फॉर्म में लिया, एक सॉलिड ले लिया। सॉलिड होगा तो एड्सॉर्प्शन सरफेस एरिया कम होगा, पाउडर्ड फॉर्म में होगा तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा। मतलब आप 1 ग्राम लेने के बाद मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हो। K is a constant, P is the pressure, N is 1 by N is order of reaction, 1 by N is order of reaction, और इसमें N is always greater than 0। मतलब 1 या अपन उसे 1 लिख सकते हैं, N is always greater than 1। इक्वल टू 1 भी हो सकता है, बट इट इज ऑलवेज लाइज बिटवीन डिपेंडिंग ऑन। तो अपन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही लिख लेते हैं। वो n का वैल्यू जो होता है 1 और 0 के बीच में ही होता है। अब आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख ही दिया, तो एक आध एग्जांपल ले लेना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, और क्या देख लेंगे अपन, हमें क्या फर्क पड़ेगा। अगर n कैलकुलेट करना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो इसको अपन बोल सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ एड्सॉर्प्शन, फ्रैक्शन ऑफ एड्सॉर्प्शन 1 by n है to the power of 1 by n। तो मैं इसमें ना अगर दोनों तरफ लॉग ले लेता हूं, लॉग ऑफ x by m विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ k प्लस 1 by n इंटू लॉग ऑफ p। तो अगर मैं प्रेशर चेंज करूंगा तो x by m चेंज होगा, 1 by n इंटू लॉग ऑफ p। इसको y इक्वल टू mx प्लस c कर देते हैं। m इज द स्लोप एंड दैट इज 1 by n। स्लोप पता है ना अपन को क्या होता है भाई, अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो y एक्सिस पे अपन ले लेते हैं log ऑफ x by m, और x एक्सिस पे ले लेते हैं अपन log ऑफ p। तो स्लोप अपने पास पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब आप ऐसे ड्रॉ करने वाले हैं ग्राफ, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव का मतलब है कि थीटा शुड बी लेस देन 90। ये अपने लिए क्या हो गया, log ऑफ k, दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट, c इज इंटरसेप्ट इन दैट। थीटा का वैल्यू जो होगा दैट इज लेस देन 90, तो अपन बता सकते हैं भाई tan थीटा इज द स्लोप, और इसमें क्या है वो 1 by n।
अगर हम log ऑफ x बाय m का ग्राफ ड्रॉ करें log p के साथ, तो मुझे थीटा मिल जाएगा, और थीटा मिलेगा तो आई एम एबल टू कैलकुलेट n का वैल्यू, tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय n। तो अगर मुझे थीटा मिल गया तो मैं tan थीटा ले लूंगा, एंड दैट वैल्यू इज 1 बाय n, तो n आ जाएगा अपने पास। तो अपन को ऑर्डर पता चल जाएगा। मैं एक एग्जांपल भी ले लूंगा उसको। तो मेरा मतलब यह था कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है एड्सॉर्प्शन भी बढ़ेगा, बट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूंगा तो मैं ग्राफ भी ऐसे चेंज कर सकता हूं। यहां पर ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है। तो अपन को पता है टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एड्सॉर्प्शन कम हो जाएगा। इधर एड्सॉर्प्शन सबसे ज्यादा है, मतलब T1 इज लेस देन T2 इज लेस देन T3। टेम्परेचर बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन कम हो जाएगा। Actually, all this adsorption is related to the bond formation. अपन से एड्सॉर्प्शन के ग्राफ बॉन्ड फॉर्मेशन से भी पूछ सकते हैं, जो अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में, केमिकल बॉन्डिंग इस टाइप के ग्राफ पढ़े थे ना अपने, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ, इस टाइप से भी पूछ सकते हो। अगर एड्सॉर्प्शन होगा तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। एड्सॉर्प्शन होगा तो एक्सोथर्मिक फिनोमेना, एक्सोथर्मिक होगा तो एनर्जी विल बी लेस, जो ग्राफ अपन ने पहले पढ़ रखे हैं केमिकल बॉन्डिंग। यू कैन कोरिलेट विद दैट। आप बॉन्ड फॉर्मेशन का किसी भी, केमिकल बॉन्डिंग के किसी भी कंसेप्ट से आप मुझे कोरिलेट कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम। अब इसमें मैं एक एग्जांपल ले लूंगा, बट एक और अपन डिस्कस कर सकते हैं ऐसे। इसमें मल्टी लेयर भी बन सकता है, फिजिक्स ऑप्शन को अगर रिप्रेजेंट करेगा तो। मैं इसको हटा रहा हूं ग्राफ को। ये ग्राफ आप अपने आप बना सकते हो इस, अगर मैं ये लिख रहा हूं तो, ठीक है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। जैसे एक दूसरा आइसोटोम लिखेंगे अपन, जैसे मैंने आपको लिखा, द सेकंड आइसोटोम इज लैंगम्यूर आइसोटोम। आइसोटोम, और जनरली इट रिप्रेजेंट केमीज ऑप्शन, केमीज ऑप्शन। जनरली इट रिप्रेजेंट केमीज ऑप्शन। ग्राफ दोनों का एक जैसा है, ग्राफ में मुझे कोई डिफरेंस नहीं है। ये भी x बाय m, ग्राफ इज लाइक दिस, ये भी प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा। तो x बाय m विल बी इक्वल टू k इंटू p टू द पावर ऑफ 1 बाय n, ये भी रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन सिंस द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन कॉन्सेंट्रेशन, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x बाय m विल बी इक्वल टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑफ 1 बाय n। मतलब मैं प्रेशर की जगह कॉन्सेंट्रेशन भी लिख सकता हूं। जैसे अपन ना वो देखते हैं टीवी पे, ऐड आता है ना पॉन्ड्स का, और पानी गंदा सा रखा रहता है, मतलब स्किन को दिखाते हैं, वो गंदी स्किन है आपकी। मेरी तो साफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो उसमें वो क्या करते हैं, चारकोल डाल देते हैं, तो पानी साफ हो जाता है, ट्रांसपेरेंट। वो क्या करता है चारकोल, वाटर से सारा का सारा जो गंदा होता है, डस्ट या जो भी गिवन होगा उसमें, वो सारा एब्जॉर्ब कर लेता है, तो पानी ट्रांसपेरेंट हो जाता है। और बताते हैं कि पॉन्ड्स ऐसा करेगा हमारे स्किन पे, ऐसा कुछ नहीं होता, वो बस ऐसे ही बताते हैं, ठीक है ना। तो अपन बोल सकते हैं भाई ठीक है, उसमें क्या बताएंगे, वो चारकोल सरफेस एरिया बड़ा है, राइट टॉप पे ब्लर है, कोई बात नहीं, उधर ना जनरली केमीज ऑप्शन लिखा हुआ है, मतलब जो ये ना लैंगम्यूर आइसोटोम, वो जनरली केमीज ऑप्शन लिखा हुआ है। वो मैंने उसको फिर ठीक नहीं किया, ब्लर मुझे भी दिख रहा है स्क्रीन पे, जो मुझे ब्लर दिखेगा वो तुमको, जैसा तुमको दिखेगा ना स्क्रीन पे, वैसे मुझे भी दिखेगा स्क्रीन पे। मुझे पता रहता है कि तुमको ऐसे ही दिखेगा, इसलिए वो मैं रिफ्लेक्शन की बात कर रहा था। ये मुझे तो ये भी ब्लर दिख रहा है, और ये भी थोड़ा थोड़ा ब्लर दिख रहा है, बट वो उतना अपन, मतलब x बाय m इधर लिखा हुआ है, 1 बाय एन पी, वो थोड़ा अपन को मिल जाएगा। ये ऊपर वाला फॉर्मूला बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, नीचे वाले में मैंने प्रेशर की जगह कॉन्सेंट्रेशन ले दिया, बस सी लिख दिया, सी इज अ कॉन्सेंट्रेशन, है ना। लिख लेते हैं, कोई बात नहीं अपन इसको, क्योंकि मुझे थोड़ा स्पेस भी चाहिए ना इसको देने के, लिखने के लिए।
इसमें अब उसने क्या, अब बाकी x बाय एम अपन को पता है, प्रेशर अपन को पता है, कौन क्या क्या चीज है मुझे पता है, n क्या है मुझे पता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसमें एक एग्जांपल लेंगे क्योंकि अपन काइनेटिक्स पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको पढ़ने में अपन को और कोई बढ़िया से एग्जांपल ले लो आप, हेट्रोजीनियस वाला ही ले लो, केमीज ऑप्शन का वो ले लेंगे अपन, मतलब रिडक्शन ऑफ एल्कीन जैसे वो बता रहा था, अपन वही एग्जांपल ले लेंगे। अब इसमें क्या होगा, इसमें कुछ लिमिटेशंस होंगे, अजम्पशंस। वैसे तो वो अजम्पशन यहां भी लेने हैं उसको, assumptions है, assumption with respect to kinetic theory of gases, kinetic theory of gases वो assumption ले सकते हैं। एक assumption तो ये है कि भाई एक साइट पे एक ही मॉलिक्यूल का एड्सॉर्प्शन अज्यूम करना, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब अगर सरफेस है एक ही पार्टिकल के ऊपर दूसरा भी एड्सॉर्ब होगा, थर्ड भी एड्सॉर्ब होगा, ऐसा नहीं होगा। तो आपको अज्यूम करना है कि मोनोलेयर फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस। दैट्स व्हाई अपन कहेंगे भाई मोनोलेयर तो फॉर्म होता ही है केमी एब्जॉर्प्शन में, इसलिए अपन ने इसकी बात कर ली कि लैंगमुर एक्सोथर्म जनरली एक्सप्लेन्स फिजियो एब्जॉर्प्शन भी एक जैसे ही ग्राफ तो है, only monolayer formation take place, layer formation take place, ये assumption करना है। दूसरा, एक साइट में एक ही पार्टिकल एड्सॉर्ब होगा, only one molecule is adsorbed on one site। थर्ड, जो एक मॉलिक्यूल का एड्सॉर्प्शन है ना, क्योंकि नियर पार्टिकल भी तो प्रेजेंट होंगे, तो वो भी तो उसे अट्रैक्ट करेंगे या उसको रिपेल करेंगे लाइक दैट। तो ओपन को ये बताना है कि भाई एड्सॉर्प्शन ऑफ ईच पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ नियर बाई साइट। भाई आसपास जो पार्टिकल है वो उसे अफेक्ट नहीं कर रहे। एड्सॉर्प्शन of each particle is independent of nearby particles। मतलब जो नियर बाय पार्टिकल्स है उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। It fails at very high pressure। It fails at very high pressure, मतलब मॉडरेट प्रेशर तक ही अपन बता सकते हैं उसे। और वैसे भी मॉडरेट प्रेशर तक एब्जॉर्ब होने के बाद वो कांस्टेंट हो गया, तो ही इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि भाई वो कांस्टेंट क्यों हो गया। दैट्स व्हाई ही राइट दैट इट फेल्स एट वेरी हाई प्रेशर। ठीक है, दैट इज केमीज ऑप्शन। अपन इससे प्रेशर से भी बता सकते हैं, कंसंट्रेशन से भी बता सकते हैं, एवरीथिंग रिमेन्स सेम। अल्टीमेटली आपने जो भी हमें पढ़ाया उसमें आपने मुझे ये बताया, बस आप मुझे ये बता दो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे कोरिलेट होता है इससे, तो हमारा काम हो जाए। ये जनरली केमीज ऑप्शन को मतलब एक्सप्लेन करेगा, ये फिजिक्स ऑप्शन को, बट दोनों के ग्राफ तो एक जैसे ही है। हाँ, तो एब्जॉर्प्शन तो एक जैसे ही होगा, बस इसमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अप्रिशिएबल होता है, इसमें नहीं होता। दोनों एक्सोथर्मिक, दोनों के डेल्टा जी नेगेटिव, एवरीथिंग इज सेम, बस एनर्जी का डिफरेंस है, बाकी कुछ भी नहीं। दैट्स व्हाई होगा ही सेम। सो लेट अस टेक वन एग्जांपल, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई एग्जांपल ले लेते हैं। इफ वी टेक एग्जांपल, अपन रिडक्शन ऑफ एल्कीन का ही एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वो बता रहा था ना कि भाई केमीज ऑप्शन का जो रिडक्शन ऑफ एल्कीन का एग्जांपल है उसी का लेते हैं। रिडक्शन ऑफ एल्कीन्स। हमको एक बात पता है, जब अपन रिडक्शन ऑफ एल्कीन की बात करते हैं तो
अपन कहते हैं द हाइड्रोजन गैस is adsorbed on the metal surface. Adsorb on the metal surface. On the metal surface. मेटल सरफेस जो वो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट पहले हाइड्रोजन एड्सॉर्ब होता है, द हाइड्रोजन गैस is adsorbed on metal surface, on metal surface as H atom. Then alkene or alkynes is added. Alkene is added. ऐड करेंगे अपन तो वो गैसियस फॉर्म में होगा, कोई बड़ा एल्कीन ऐड करेंगे तो डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, लेकिन एल्कीन इज एडेड। अपन क्या करेंगे, अपन को पता है कि भाई ऐसे मेटल सरफेस होता है, पहले मैंने आपको पढ़ाया है, हाइड्रोजन गैस ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन विल बी एड्सॉर्ब होता सरफेस। उसके बाद जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ज्यादा हाइड्रोजन एटम उसमें स्टिक होंगे एच एटम के फॉर्म में। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रैक्शन ऑफ साइट occupied by hydrogen atom. मतलब hydrogen adsorb on the surface. So we'll write that rate of reaction will be directly proportional to the adsorption of hydrogen atom of H atom on metal surface. And adsorption of hydrogen atom is what? X by m. So rate of reaction will be directly proportional to rate of reaction is directly proportional to, we can write that, अब हम ऐसे कर लेते हैं भाई, जैसे लैंगम्यूर ने अपन को एक वो प्रेशर के टर्म में उसने कुछ डिफरेंट इक्वेशन दिया अपन को x by m, बट वो मीनिंग दोनों का एक ही है। x by m is directly proportional to a upon ap upon 1 plus bp, उसने ऐसे इक्वेशन दिया था अपन को फ्रैक्शन के फॉर्म में लैंगम्यूर ने। So that will be proportional to what? X by m, or x by m is proportional to what? AP upon 1 plus BP, where this is given by what? Langmuir. Where A and B are constant, B are constant, they are not Van-der-Waals constant. Huh? A and B are constant and depends on nature of gas. और Langmuir constant बोलते हैं, Langmuir constant and depends on nature of gas. Nature of gas. तो अपन लिख सकते हैं therefore x by m is equal to k into this. Therefore rate of reaction will be equal to k into AP upon 1 plus BP. इसको मैंने k डैश कर देता हूं, k डैश लिखा मैंने है, k डैश की जगह k1 कर लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, और डैश नहीं दिखेगा तो और लगेगा कि पता नहीं क्या है। ये रेट ऑफ रिएक्शन where A and B are Langmuir constant and depends on the nature of gas, and their value depends on the nature of gas. अपन क्या करेंगे, चलो रिडक्शन करके देखते हैं। ये आपने इक्वेशन बनाया, रिडक्शन करके देखते हैं। मेरे पास एक केस आया ऐसे, केस 1,
at very high pressure. At very high pressure. अगर प्रेशर बहुत ज्यादा है, then 1 plus BP will be nearly BP. प्रेशर बहुत ज्यादा है ना, therefore rate of reaction मतलब rate of absorption की बात, minus dp by dt, that is the rate. इसको रेट को लिख सकते हैं, that is minus dp by dt. प्रेशर कम होगा ना, जैसे जैसे ये एब्जॉर्ब होंगे, प्रेशर इन द वेसल क्या होगा, कम होगा. तो मैंने रेट को ऐसे लिख लिया, माइनस dp by dt. मैं रेट को लिख लेता हूँ प्रेशर के टर्म्स में, लिख सकते हैं, पूरा काइनेटिक्स पढ़ा आपने. Rate is minus dp by dt will be equal to, that is k1 into ap upon bp. ये तो माइनस dp by dt is equal to, ए बी कांस्टेंट है, पी कैंसिल हो गया, के हो गया अपने पास. इट फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स. अगर रेट के बराबर आ जाए, कंसंट्रेशन या प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो जाए, इट इज अ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स. इट फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स. मतलब अगर रिडक्शन में वेरी हाई प्रेशर पे करूंगा तो इट फॉलोज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स. ठीक है भाई, केस 2 ले लो. एट लो प्रेशर, अगर मैं लो प्रेशर की बात करूंगा ना, देन 1 plus bp will be nearly equal to 1. फिर तो ये 1 के बराबर ले लूंगा. तो मैं क्या करूंगा, माइनस dp by dt will be equal to k1 into a into p हो जाएगा. और I can write this as k into p because a is also a constant. मैंने दोनों कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया, नया कांस्टेंट बना लिया. p का पावर क्या है, 1. I can write like this, k will be equal to, इसका पावर 1 है ना, so k will be equal to 2.303 divided by t into log of p naught by pt. follows first order kinetics. p का पावर 1 है ना, इसलिए it follows first order kinetics. it follows first order kinetics. होगा ना. अब तो मुझे एक बात बताओ, वेरी हाई प्रेशर पे जीरो है वैल्यू, पी से इंडिपेंडेंट है. लो प्रेशर पे पी है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर है. तो मॉडरेट प्रेशर, भाई हाई प्रेशर पे पी का पावर 0 आ रहा है, लो प्रेशर पे 1 आ रहा है, तो मॉडरेट पे बिटवीन 0 and 1. एट मॉडरेट प्रेशर, at low pressure minus dp upon dt is equal to k into p to the power of 0. At high pressure, p to the power of 1. At high pressure, minus dp by dt is equal to p to the power of 0. Therefore, at moderate pressure, moderate pressure क्या लिखूं मैं, तो अपन लिखेंगे moderate pressure में minus dp upon dt will be equal to k into p to the power of 0 to 1. हाँ, तो इसलिए तो आपने 1 by n लिखा था और n का वैल्यू बोला था ना, ग्रेटर देन 1. जितना भी रिएक्शन वेरी हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच में होगा, वो सारे के सारे में 1 by n का वैल्यू फ्रैक्शन होना चाहिए.
We got the answer. Because at low pressure it follows reduction जो भी जितना भी होता है ना एल्कीन और एल्काइन का ओपन हाई प्रेशर पे ही करते हैं. इसका मतलब है जो रिडक्शन अपन यूज करते हैं, जो रिडक्शन अपन ने किया, दे ऑल फॉलोज व्हाट, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स. वो सारे के सारे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेंगे. दैट इज, दिस इज योर एडसॉर्प्शन पार्ट, एडसॉर्प्शन फेनोमेना पार्ट. This is your adsorption phenomena part. Next we can discuss about the, थोड़ा सा अपन कैटलिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज वैसे तो कैटलिस्ट अपन ऑलरेडी, कैटलिस्ट का जो भी क्वेश्चन आएगा ना वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में सोच के ही, कि भाई ऑर्गेनिक रिएक्शंस कैसे कैटलिस्ट पर डिपेंड करते हैं, उसके उसको उसको सोच के ही मैं सारे कैटलिस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा और बताऊंगा. सारे क्वेश्चंस मैं कैटलिस्ट के उसी बेसिस पे सॉल्व करूंगा जो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बट थोड़ा सा कैटलिस्ट को अपन डिस्कस करेंगे. बट ये आपका एडसॉर्प्शन फेनोमेना है. इसमें कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे अपन, एक दो क्वेश्चंस कर लेंगे नेक्स्ट टाइम, और उसके बाद फिर अपन कैटलिस्ट डिस्कस कर लेंगे. कैटलिस्ट हार्डली टेक, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं होगा. मैं केमिकल इक्विलिब्रियम में भी आपको काफी पढ़ा चुका हूँ कैटलिस्ट के बारे में, और काइनेटिक्स में भी अपन काफी डिस्कस कर चुके हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत डिस्कस कर चुके हैं. सो इट विल हार्डली टेक 15 to 20 मिनट्स, इससे ज्यादा कैटलिस्ट नहीं पढ़ेंगे. थोड़ा सा बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बताना है मुझे बस, वरना मैं कैटलिस्ट बताता भी नहीं. वो नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, और इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और फिर अपन डाउट्स डिस्कस करेंगे. कोलॉइड्स अपन नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे. इसको रिवाइज करना, कोई डाउट हो तो पूछिए. दैट्स ऑल. ठीक है, तो आज अपन इतना ही करते हैं. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.